Good morning, students. We are pleased to inform you that we have started Learn C with me in our super easy way. Stay with us and without much effort, learn C from beginning. Today our topic is operators in C. This is part 3, part 1, जिसमें ऑपरेटर क्या होते हैं एंड पार्ट 2 ऑपरेटर बेस्ड ऑन ऑपरेंड्स. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. Now we see operators in C based on operations. Based on operations, operators C में 7 types के होते हैं. There are 7 types based on operations. These are arithmetic operator, relational operator, increment and decrement operator. This is plus plus and minus minus. Relational operator, logical operator, assignment operator, bitwise operator and special operator. These operators are binary operator. If we talk about ternary operator, then operator based on operations, there is one ternary operator, that is conditional operator. This is conditional operator. इसके बारे में हम already discuss कर चुके हैं. Now we see these binary operators based on operations one by one. वन बाय वन करके हम सारे ऑपरेटर्स को अच्छे से वीडियोस के थ्रू सीखेंगे. फर्स्टली वी सी अर्थमेटिक ऑपरेटर. अर्थमेटिक ऑपरेटर these operators are based on numeric calculation. ये ऑपरेटर्स न्यूमेरिक डेटा के ऊपर, इंटीजर डेटा के ऊपर अप्लाई होते हैं. एंड these arithmetic operators are plus, minus, multiply, divide and this is modulo divisional operator. इन ऑपरेटर को हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. प्लस करने के लिए, माइनस करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए एंड डिवाइड करने के लिए इंटीजर वैल्यूज को. दिस इज मोड्यूलो डिविजनल ऑपरेटर. ये ऑपरेटर रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यूज होता है. टू फाइंड द रिमाइंडर. फॉर एग्जाम्पल अगर हम करते हैं 6 रिमाइंडर 4, दैट इज रिमाइंडर आएगा दैट इज 2. अगर हम करते हैं 5 मोड्यूलो डिविजनल 5, then remainder will be 0. Now we see the next thing about modulo divisional operator. One most important thing about modulo divisional operator is अगर हम ऐसे करते हैं that is 7% 2, तो रिजल्ट आएगा 1. अगर हम करेंगे -7% 2, तो रिजल्ट आएगा -1. It means result, the sign of the result will be the sign of our first operand. This is sign of the result will be the sign of our first operand. अगर हम इसको करते हैं like this, then result will be 1 and अगर हम इसको करते हैं then result will be -1. It means the sign of the result
will be the sign of our first operand. First operand. Okay students, this is about modulo divisional operator. इसके रिजल्ट का वही साइन होगा जो हमारे फर्स्ट ऑपरेंड का साइन है. The next thing about modulo divisional operator is it cannot be used. It cannot be used on floating point data. Floating point data. For example, अगर आप लिखते हैं float a, b, a की वैल्यू आपने डाली लाइक दिस एंड b की वैल्यू आपने डाली like this, and if you are doing printf, this is inverted commas percent f. अगर आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं लाइक दिस, तो आपने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा वो एज इट इज लिखाएगा, और यहाँ पे जब भी इसको इस तरीके का स्पेसिफायर मिलता है तो ये वेरिएबल को रीड करने कोमा के बाद पहुंचेगा, दैट इज a%b, a मॉड्यूलो डिविजनल ऑपरेटर b. तो यहाँ पे a और b फ्लोटिंग वैल्यूज हैं एंड द रिजल्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग. एरर विल बी कम. In this statement error will be come. So floating on the floating point data, this is not applied. Modulo divisional operator cannot be applied on the floating point data. Okay students, this is arithmetic operator. ये arithmetic operator हमारे C ने हमें built-in arithmetic operators ये हमें दिए हैं. Now we see next thing about arithmetic operator, that is हम कोई भी ऑपरेटर देखें तो उसकी एसोसिएटिविटी एंड प्रीसीडेंस होती है. हर ऑपरेटर की हमें एसोसिएटिविटी एंड प्रीसीडेंस देखनी होगी. एसोसिएटिविटी क्या होती है? दिस इज अगर आपके पास सेम प्रायोरिटी के मोर देन वन ऑपरेटर आ जाए, अगर सेम प्रायोरिटी के मोर देन वन ऑपरेटर आ जाए तो कौन सा ऑपरेटर पहले खुलेगा और कौन सा बाद में खुलेगा, दैट इज कौन सा पहले खुलेगा एंड कौन सा बाद में खुलेगा, दैट इज एसोसिएटिविटी. एंड प्रीसीडेंस इज प्रायोरिटी. किसको हायर प्रायोरिटी है, कौन से ऑपरेटर को, एंड किसको लोअर प्रायोरिटी है, दैट इज डिसाइडेड इन द प्रीसीडेंस. अगर सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर आपके बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, मोर देन वन आ जाते हैं, तो पहले कौन सा खुलेगा और बाद में कौन सा खुलेगा, दैट इज एसोसिएटिविटी. अब अर्थमेटिक ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी होती है, दैट इज लेफ्ट टू राइट. मतलब अगर मोर देन वन अर्थमेटिक ऑपरेटर आ जाते हैं तो उनको हम लेफ्ट से खोलेंगे और राइट तक चलेंगे. और हायर प्रायोरिटी जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जिनको मिलती है, दैट इज डिवाइड, मॉड्यूलो, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलो डिविजनल ऑपरेटर, एंड देन प्लस माइनस. इनको पहले हायर प्रायोरिटी मिलती है और इनको लोअर प्रायोरिटी मिलती है, और अगर ये सेम लाइन में आ जाएं तो इनको लेफ्ट टू राइट खोला जाता है. दिस इज प्लस माइनस. नाउ वी सी दिस फ्रॉम एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, अब अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन जो होते हैं, एक्सप्रेशन विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल
प्लस कांस्टेंट प्लस ऑपरेटर्स। एक्सप्रेशन इंटीजर टाइप का हो सकता है, फ्लोट टाइप का हो सकता है एंड मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशन हो सकता है। इंटीजर एक्सप्रेशन जिसके अंदर इंटीजर्स वैल्यूज होंगी, इंटीजर वैल्यू, इसके अंदर फ्लोट वैल्यूज होंगी और इसके अंदर इंटीजर प्लस फ्लोट मिक्स्ड वैल्यूज होंगी। अब हम देखते हैं इंटीजर एक्सप्रेशन। पहले इंटीजर एक्सप्रेशन, दैट इज फॉर एग्जांपल अगर सी में हम इसको सोल्व करें 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6 इंटू 9 मॉड्यूलो डिविजनल ऑपरेटर 3 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3, देन व्हाट विल बी द आंसर। पहले हम हायर प्रायोरिटी के ऑपरेटर्स को खोलेंगे। 3 इंटू 5, 5 डिवाइडेड बाई 2, 6 इंटू 9, 9% 3 प्लस 2 इंटू 3। लेफ्ट टू राइट हम इनको खोलते चलेंगे। पहले हम इसको खोल लेते हैं, प्लस 6 इंटू 9 दैट इज 54। खोलते चलते हैं हम इन ऑपरेटर्स को। 2 इंटू 3 6। नाउ 15 डिवाइडेड बाई 2, देन क्वोशंट इज 7। अब हम इसको खोल लेते हैं। 54 मॉड्यूलो डिविजनल ऑपरेटर 3, देन रिमाइंडर इज 0। Now we solve this. Answer is 13 minus 3 equal to 10. This is the answer. Now this is integer expression. We can use float expression also. Float expression will take float values and ये फ्लोट वैल्यूज वेरिएबल्स में हो सकती है या कांस्टेंट पर हो सकती है। फ्लोट वैल्यूज फॉर एग्जांपल अगर ये फ्लोट एक्सप्रेशन है 4.5 इंटू 2.0 प्लस 5.0 डिवाइडेड बाई 2.0 प्लस 15.75. This is the float expression. Now students, you will tell me in the comment box what will be the result of this float expression. Okay students, comment box में आप इसका रिजल्ट मुझे बताएंगे। Now we see mixed mode expression. इसमें इंटीजर वैल्यू होगी लाइक 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस फ्लोट वैल्यूज भी इसके अंदर होंगी लाइक 2.0 प्लस 5.0 डिवाइडेड बाई 2.0 प्लस 14.50। दिस इज द मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशन एंड इसका रिजल्ट क्या आएगा ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं दिस इज ऑल अबाउट अर्थमेटिक ऑपरेटर। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट अर्थमेटिक ऑपरेटर। आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद के ऑपरेटर्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखना चाहें तो एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं हम। लेट्स सी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखें दिस इज इंक्लूजन ऑफ हेडर फाइल। आपको प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है ये अच्छे से अगली वीडियोस के थ्रू आपको समझाया जाएगा।
अभी हम यहाँ पर एक बेसिक प्रोग्राम देख रहे हैं, हैश इंक्लूड stdio.h. This is the inclusion of header file. हेडर फाइल को सबसे पहले इंक्लूड किया जाता है ताकि इन हेडर फाइल्स के सारे फंक्शंस को हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकें। हेडर फाइल के अंदर इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। अभी प्रोग्राम्स के बारे में आगे बताया जाएगा आपको। एंड नाउ हियर ओनली वी सी द एक्सप्रेशन, इंटीजर एक्सप्रेशन हियर। सपोज हमने एक एक्सप्रेशन लिया और इस एक्सप्रेशन के अंदर हमने जो वैल्यूज डाली, इंटीजर वैल्यूज, दैट इज लाइक दिस। ये एक सिंपल प्रोग्राम है। अब हम इस एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट आएगा उसको प्रिंट करा लेंगे। दिस इज printf फंक्शन एंड दिस इज इनबिल्ट फंक्शन इन दिस हेडर फाइल stdio। दिस इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल और इसके अंदर ये आउटपुट फंक्शन इनबिल्ट है। और यहाँ पे हमने printf के अंदर, इस फंक्शन के अंदर हमने सिंपली डबल कोट के अंदर एक कमेंट लिखा, दैट इज expression1 इज %d और ये /n नेक्स्ट लाइन के लिए हम यूज कर सकते हैं। कोमा लगाया, %d मिलते ही ये कोमा के इस तरफ पहुंचेगा और यहाँ पे कोई वेरिएबल की वैल्यू जो हमने लिखा है वो उसको उठाएगा। दिस इज expression1 एंड नाउ वी एंड दिस प्रोग्राम। दिस इज get ch, दिस इज इनबिल्ट फंक्शन। ये क्या होता है इसको हम आगे देखेंगे। आप प्रोग्राम को इतना ही रखें। अब ये एक सिंपल सा इंटीजर एक्सप्रेशन का प्रोग्राम है जो हमने देखा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर। नाउ वी सी द अदर ऑपरेटर्स इन आवर नेक्स्ट वीडियोज। असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये जो भी ऑपरेटर्स हैं वी विल सी दीज ऑपरेटर्स बेस्ड ऑन ऑपरेशंस। द ऑपरेटर बेस्ड ऑन ऑपरेशंस जितने भी नेक्स्ट हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे और इन नेक्स्ट वीडियोस के थ्रू हम सारे ऑपरेटर्स को अच्छे से समझ लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब द चैनल फॉर आवर नेक्स्ट easy videos of C and hit the bell icon to get all the notifications. Okay students, thank you. Have a nice day. Bye bye.